Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. So it's an interactive program, and if you have any queries regarding mutual funds and related issues, you can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Ambarish Saxena. नमस्कार। और कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं वी रवि कुमार। Indian companies mop up over 9 lakh crore rupees through equity and debt routes in 2021. Foreign investors pull out over 23,500 crore rupees from the Indian capital markets so far in December. And global crude oil prices end higher this week as investors focus on OPEC meet next year. भारतीय कंपनियों ने इक्विटी और डेट माध्यमों से वर्ष 2021 में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी जुटाई। भारतीय पूंजी बाजारों में दिसंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने लगभग 23,500 करोड़ रुपए निकाल लिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्यों में ओपेक की बैठक से पहले इस सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई। And the first story that we're tracking is Indian companies mopped up over 9 lakh crore rupees through equity and debt routes in 2021. Out of the cumulative 9 lakh crore rupees garnered till mid-December this year, 5.5 lakh crore rupees were mopped up from the debt market, while 2.1 lakh crore rupees came from the equity market. 30,840 crore rupees through REITs and invitees, and 1.1 lakh crore rupees via the overseas route. In 2020, firms raised 11 lakh crore rupees, including 7.9 lakh crore rupees through debt and 2.1 lakh crore rupees through equity. Out of the total 5.5 lakh crore rupees raised through Indian debt markets in 2021, 5.4 lakh crore rupees came from private placement and 14,277 crore rupees was through public issuance. In the equity market, funds mostly came from initial share sales as massive equity participation pushed the IPO market to new levels this year. Within the equity segment, a total of 63 IPOs helped companies raise 1.2 lakh crore rupees. In comparison, 26,613 crore rupees were raised in 14 main board IPOs last year. Apart from public issues, equity fundraising through QIPs dropped to 41,894 crore rupees in 2021 from 84,509 crore rupees last year. The number of QIPs in 2021 were higher than last year, but the quantum has been relatively lower. And our first caller for the day has joined us, R.S. Dahiya, a regular caller from Delhi, online with us. Welcome to Market Mantra, Dahiya sir. सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर रेडियो सेट ऑफ कर देंगे तो एको नहीं आएगा। 1 minute, 1 second। हेलो। हाँ, पूछिए सर। Sir, my question to Dhirendra ji is, has the market bottomed out and is the right time for a investor to invest money through mutual funds? Yeah, yes, sir. You have been listening for so long. By now, I think you would have come to know that, I wish I knew any of these things. Nobody knows. And you shouldn't be asking this. Okay, Dahiya Sahab, as usual, that's Dhirendra saying that there's no point bottom fishing in the markets. Jitendra from Jaipur is online with us. Jitendra, welcome to Market Mantra. Please put your question. हाँ, हेलो सर, हमारा प्रश्न है कि बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है
और जो हम न्यूज में सुनते हैं कि इस हफ्ते एफआई ने पूंजी बाजार से इतना करोड़ निकाला और ऋण बाजार में डाला, इसका मतलब क्या होता है सर? फंड, बैलेंस फंड आप जानते हैं कि एक ऐसा फंड जो कि इक्विटी में भी लगाता है, डेट में भी लगाता है, और जो सबसे पुराना डेफिनेशन जो आविष्कार हुआ था बैलेंस फंड का कि आधा पैसा इक्विटी में आधा पैसा डेट में, और डेट बढ़ जाए तो डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में लगाया जाता था, इक्विटी में गिरावट हो तो, और जब इक्विटी में बढ़त हो तो वहां से पैसा निकाल के डेट में लगाया जाता था। बैलेंस्ड एडवांटेज ये एक लाचारी में बना हुआ कैटेगरी है जो कि काफी प्रॉमिसिंग लगने लग गया है। बीच में फिर ये जो बैलेंस फंड का डेफिनेशन है, जो हमारे कानूनी डेफिनेशन था कि एक भारत में एक टैक्स डिफरेंशियल क्रिएट हुआ कि डेट का टैक्स ट्रीटमेंट अलग था, इक्विटी का टैक्स ट्रीटमेंट अलग था। इक्विटी से मिलने वाला सारा मुनाफा अगर कैपिटल गेन्स के फॉर्म में अगर आप रियलाइज करें, और वो था 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड पे, तो सब कुछ टैक्स फ्री हुआ करता था। तो बैलेंस फंड को इस वजह से जो बैलेंस फंड का डेफिनेशन है वो ये हुआ कि उसके जो इक्विटी फंड का डेफिनेशन है वो ये हुआ कि 50% से बढ़ा के 51% से बढ़ा करके टैक्स लॉज के तहत टैक्स स्टैट्यूट में वो बढ़ा दिया गया 65%। तो सारे बैलेंस फंड 65% इक्विटी में लगाने लग गए। लेकिन जब बाजार में गिरावट होती थी तो 65% इक्विटी से नुकसान होता था, तो उसका लोगों ने काट निकाला कि ऐसे डेट में ऐसे इक्विटी में पैसा लगाया जाए जिसका कि टैक्स के नजरिए से उसका डेफिनेशन के तौर पे वो इक्विटी माना जाए, लेकिन वो उसके कैरेक्टर्स इक्विटी के नहीं हो। इसलिए जो इक्विटी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज जो आप एक किसी शेयर खरीदते हैं और लगे हाथ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदते हैं जिससे कि एक भविष्य के दिन आप उसको बेच देते हैं, तो आपसे एक तरफ से आप इक्विटी का आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, और इससे मिलने वाला जो रिटर्न है वो भी करीब करीब डेट जैसा ही होता है, लिक्विड फंड से थोड़ा बेहतर या लिक्विड फंड जैसा रिटर्न होता है। तो देखने में ये लगेगा, टैक्स के नजरिए से ये लगेगा कि ये इक्विटी फंड है, और इस तरह से बैलेंस एडवांटेज फंड की शुरुआत हुई। अब बैलेंस फंड एक ऐसा कैटेगरी बन गया है जिसमें कि फंड मैनेजर ये क्लेम करते हैं कि अधिकतर पैसा 30-40% पैसा इक्विटी में लगा रहेगा, 30-40% पैसा हमेशा डेट में लगा रहेगा, और जरूरत के हिसाब से नजरिए से कि उनका आउटलुक कैसा है उस हिसाब से वो इक्विटी या डेट में वो बैलेंस इसको थोड़ा अनबैलेंस करके उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करेंगे। यही है बैलेंस एडवांटेज फंड, और इसका टैक्स ट्रीटमेंट हमेशा इक्विटी की तरह होता है। उसको इक्विटी के एंगल से देखा जाता है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही है बैलेंस एडवांटेज जी। और मुंबई से हमारे श्रोता सचिन लाइन पे हैं। सचिन नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, निफ्टी नेक्स्ट 50 इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? थैंक यू। मुझे लगता है ये बड़ा फंड है, और अगर आपको अगला वाला अच्छा मिड कैप फंड कौन सा होगा, अच्छा वाला बल्कि नेक्स्ट 50 भी लार्ज कैप ही माना जाएगा, तो लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कम दाम पे मिलने उपलब्ध एक ऐसा कैटेगरी है जहां पे आपको आमतौर पे एक बड़ा प्रॉमिसिंग मिड कैप जैसा ओरिएंटेशन मिल पाता है, और अगर आप डिसिप्लिन तरीके से लगाते रहे तो ये बहुत ही सुविधाजनक तरीका है सेंसेक्स और निफ्टी के यूनिवर्स से बाहर निकल के इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। Next caller is Tejas from Mumbai. Tejas, welcome to Market Mantra. Please put your question. Hello, hi. My name is Tejas from Mumbai. Yeah. सर, मुझे पूछना था, मेरे पास यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन प्लान है, फंड है, जो अभी उसका 5 साल हो जाएगा। हेलो, हाँ पूछिए। Yeah, so I just wanted to know, I want to retrieve some money from that, and since it is a pension plan, how much I can withdraw money from that? How much money is there in the fund, Tejas? Sorry? How much money is there in the fund currently? It is 2 lakhs and 26 as per today's record. Okay, thanks. Okay, so UTI pension plan, this has a lock-in period of 5 years, and if you are through with your lock-in period, then it's fine. And after 5 years, there is no exit loan, and you can take it's called retirement fund, but you can take all your money out without any exit loan.
और भोपाल से हमारे श्रोता शंकर लाइन पे हैं। शंकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते धीरेन्द्र जी, मैं सवाल पूछना चाहता था। ये AIS में कभी मेरा दिखता है कि मैंने इस साल 15 लाख के फंड बेचे डेट में से और करीब 16-17 लाख मैंने उसमें लगाए, इक्विटी में लगाए। तो मुझे क्योंकि मेरा डेट में था, मैंने धीरे धीरे स्विच करते गया साल भर में, तो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या इनकम टैक्स वाले मुझसे पूछ सकते हैं क्या कि भैया आपने पैसे कहाँ से लाए? मेरा तो ऑलरेडी डेट में इन्वेस्टेड था, मैंने स्विच करा। उनको स्विच फंक्शन पता है कि नहीं पता? और दूसरा सर, ये मेरा पूछना था कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फंड काफी अच्छा चल रहा था, अभी थोड़ा सा गिरा है इनके जाने से, सेंटा क्लॉज के जाने से। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? वापस आ जाएंगे ये लोग जनवरी में एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस विल डू बेटर एज यूजुअल? थैंक यू। जी हाँ, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, लेकिन चूंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपका पैसा डेट से निकल करके इक्विटी में लग रहा था और वो जो पहले पैसा लगा हुआ था उसका तो जस्टिफिकेशन होगा ही। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आमतौर पर अगर कोई सवाल उठाए तो उस पर उसका जवाब देने से नहीं बचना चाहिए। लेकिन ये अपने आप में सेल्फ एविडेंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपके एनुअल इंफॉर्मेशन अकाउंट में अगर ये दिख रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसको जस्टिफाई करना कोई बहुत मुश्किल काम होगी। और FII क्या दोबारा बैंकिंग सेक्टर कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरह से बाजार का विस्तार हुआ है, जिस तरह से बाजार के बारे में लोगों का व्यू बदल रहा है, कौन सा सेगमेंट कब शॉर्ट टर्म में बाजार का कौन सा भाग कैसा करता है, ये गेस करना बड़ा ही मुश्किल है। और ये भी जोड़ के देखना कि केवल ये FII के क्रिसमस के पहले पैसा निकालने का ये नतीजा है, ये उचित नहीं होगा। बहुत दिनों से विदेशी निवेशक अपना पैसा कुछ महीनों से पैसा निकाल रहे हैं और ये आमतौर पे बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा प्रॉक्सी माना जाता है किसी बाजार में पैसा लगाने का। और हमारा जो ब्रॉड इंडेक्स है उसमें भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत बड़ा एलोकेशन है, बहुत बड़ा वेटेज है। तो अगर बाजार में दोबारा से रफ्तार नहीं आता है तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गेस करना बड़ा मुश्किल है। Gurunath, our regular caller from Maharashtra, is online with us. Gurunath, welcome to Market Mantra. Gurunath, you're live. Please put your question. जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर धीरेन्द्र कुमार पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो म्यूचुअल फंड सर NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के माध्यम से हम खरीदते हैं और बैंकिंग माध्यम से खरीदते हैं, तो क्या इसके रिटर्न में कुछ मतलब डिफरेंस होता है क्या? सर मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था सर। बैंक में जो किया था उन्होंने, वहाँ उनको 10% रिटर्न मिल रहा था और वहाँ पे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस से उन्होंने किया है तो वो 10% माइनस। सर इसमें ऐसा डिफरेंस क्यों सर होता है? मुझे जानकारी नहीं है कि और 10% का तो अंतर नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये कैसे अंतर आता है। थोड़ा तो अंतर होता है अगर आप किसी इंटरमीडियरी के जरिए खरीदते हैं, जो कि अगर आप किसी बैंक के जरिए खरीद रहे हैं, किसी ब्रोकर के जरिए खरीद रहे हैं, और कोई NBFC के जरिए भी आप खरीद रहे हैं जो कि ब्रोकर हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप रेगुलर प्लान खरीदते हैं। और बहुत सारे आज के दिन ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर खर्चों का है। रेगुलर प्लान का खर्चा डायरेक्ट प्लान से करीब करीब आधा से 1% ज्यादा होता है। कई सालों में ये अंतर कंपाउंड होके थोड़ा अंतर आ सकता है। 15-20 साल के निवेश के बाद हो सकता है आपके पैसे में जो वृद्धि हुई है उसमें 8-10% का अंतर आए, लेकिन ये 15-20 साल के बाद होगा। 1-1.5 साल में तो ये केवल 1-1.25% का ही अंतर होगा। और ये अंतर इसलिए है क्योंकि जब आप किसी के जरिए खरीदते हैं तो उसको वो कमीशन मिलता है, और डायरेक्ट प्लान में जो आप खरीदते हैं जिसमें कि आप आपके किसी की मदद की आपको उसमें उम्मीद नहीं रखना चाहिए। आपको उसमें अपना खुद फंड का निर्धारित करना पड़ेगा कि किस फंड में निवेश करें और लगाएं, और कोई सर्विस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन सब चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि शायद उसकी जरूरत भी नहीं है। तो यही अंतर आता है। इतना बड़ा अंतर जो आप 10% बता रहे हैं, बारीकी से पता कीजिए कि वो किस में लगाया गया था। हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड की तुलना किसी यूनिट से या किसी और चीज से कर लें। और जयपुर से हमारे श्रोता वंदना लाइन पे हैं। वंदना नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि IT और फर्मा का ETF लेना है तो मुझे किस फंड हाउस से लेना चाहिए?
अभी इन सब की शुरुआत हो रही और ये इंडेक्स फंड और ईटीएफ जो है ये बहुत ही शुरुआती दौर में है। जब भी आप किसी ईटीएफ में निवेश करें तो दो चीज देखना चाहिए कि वो इंडेक्स कैसा है और वो फंड का एक तो खर्चा कितना है और कितने आसानी से आप उसको खरीद या बेच पा रहे हैं। ईटीएफ का की शुरुआत हो जाना, लोगों के पास उपलब्ध होना, ये एक बात है। दूसरा कि कितनी आसानी से आप उसको क्या आप जब बेचने जाते हैं तो बाजार में आसानी से बेच पाएंगे, जब आप खरीदने जाएंगे तो क्या बाजार में आसानी से बेच पाना एक चीज है, कितने एनएवी से कितने नजदीक आप उसका सौदा कर पाते हैं, कितने आसानी से खरीद पाते हैं। अगर एनएवी हो 10 रुपए और आप खरीद रहे हैं 11 रुपए तो ये कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अगर किसी का दाम हो 10 रुपए और आप बेचने जाते हैं उस समय हमेशा उसका दाम अगर 9 रुपया होता है तो आपको फायदा नहीं होगा। तो आप देखें कि उसमें उसके बाजार में लिक्विडिटी और उसके एनएवी से प्रॉक्सिमिटी कितना है, उसके बाद ही आप इसमें खरीदने की सोचें। और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। भारतीय पूंजी बाजारों में दिसंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने लगभग 23,500 करोड़ रुपए निकाल लिए। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इक्विटी बाजारों से 17,825 करोड़ रुपए और डेट बाजार से 5,708 करोड़ रुपए निकाले। इस तरह दिसंबर में 23,533 करोड़ रुपए निकाले गए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर में 2,500 करोड़ रुपए और अक्टूबर में लगभग 12,700 करोड़ रुपए निकाले थे। इससे पहले निवेशकों ने सितंबर में 26,517 करोड़ रुपए और अगस्त में 16,459 करोड़ रुपए का निवेश किया था। Our next caller is from Mumbai, Ila Shah, a regular caller. Ma'am, please put your question. Welcome to Market Mantra. Hello. हाँ इला जी, और लाइव, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। हेलो। हाँ पूछिए, अपना सवाल पूछिए इला जी, हम सुन पा रहे हैं। हाँ जी, मार्केट मंत्र को नमस्कार, धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। नमस्कार। मुझे एक एसबीआई रिटायरमेंट अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं आई एम सीनियर सिटीजन, तो वो मेरे लिए उचित होगा क्योंकि वो काफी सस्ता मिल रहा है अभी। उसकी कुछ 11-12 रुपया एनएवी है अभी, और इसके सिवाय आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं मुझे? नहीं, सबसे पहले निवेश करने के पहले आप निर्धारित आप जो पैसा लगाएंगे, आप सीनियर सिटीजन हैं, और आप जो पैसा लगाएंगे उससे आपको क्या आमदनी की जरूरत है या ये पैसा अभी बढ़ता रहेगा, उस नजरिए से अग्रेसिव प्लान में तभी पैसा लगाएं जब ये पैसा आपका लगातार बढ़ता रहेगा और इससे रिटर्न की उम्मीद आपकी बहुत ज्यादा नहीं है। ये पैसा अभी ग्रो करने के लिए पड़ा रहेगा और आपको इससे आमदनी की जरूरत नहीं होगी। अगर आमदनी की जरूरत होगी तो वो फिर आपको कंजर्वेटिव प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये पैसा पड़ा रहेगा तो जरूर इसको अग्रेसिव प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। और ये जो आपकी धारणा है कि अभी ये सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है या एनएवी ज्यादा हो जाता है तो महंगा हो जाता है, ये धारणा गलत है। ये काफी हद तक इक्विटी शेयर के बारे में माना भी जा सकता है, लेकिन वो वहां पे भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जो दाम है ये पूरी तरह से कंपनियों के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखना चाहिए कि कितनी वो कंपनी की आमदनी क्या है, कितनी बड़ी है, किस रफ्तार से बढ़ रही है, उसके आधार पर उसका दाम होता है। तब हम ये कह सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि ये महंगा है या सस्ता है। म्यूचुअल फंड के केस में अगर कोई यही म्यूचुअल फंड अगर बहुत अच्छी हो और 20 साल पुरानी हो तो हो सकता है इसका एनएवी 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो तो इसका एनएवी 11 रुपए के बजाय 110 रुपया हो या 220 रुपया हो। तो 220 रुपया होने से ये महंगी नहीं कही जाएगी। महंगी तब होगी जब बाजार महंगा हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो केवल आपके लिए जरिया है उस बाजार में निवेश करने का, और बाजार महंगा या सस्ता कभी हो सकता है, और बाजार का जो महंगा और सस्ता का जो नजरिया है वो अलग अलग लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। और मुंबई से हमारे श्रोता हसमुख लाइन पे हैं। हसमुख जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? या गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि एक्चुअली अगर पीएसयू बैंकिंग सेक्टर या पीएसयू के बारे में आपका क्या राय रहेगी, खास करके अगर ये जो बजट अभी आ रहा है कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रियायत मिल सकता और भी है? थैंक यू। पीएसयू बैंक मेरा व्यू मैटर नहीं करता है। पिछला 15 साल 20 साल जिस समय से निवेशकों के लिए पीएसयू बैंक में निवेशक के नजरिए से एक विकल्प था, तब से लोगों का एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है।
और प्राइवेट सेक्टर की तुलना में पीएसयू बैंक्स को कम सर्विसेबल माना जाता है, वो उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर ग्रो कर भी पाते तो उनके एनपीए का जो परफॉर्मेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो लंबे समय तक बहुत पैसा लगाया हुआ उनका या उधार दिया हुआ जो वापस नहीं आता है। लेकिन पीएसयू का भी जो आउटलुक है वो बदल रहा है। पीएसयू में बड़ा बदलाव आया है, बड़े ढेर सारे पीएसयू को मर्ज करके 4 बड़े पीएसयू अब हो गए स्टेट बैंक के अलावा। और देखना होगा कि इनका क्या रफ्तार रहता है, किस तरह से बदलाव आता है। और बजट में आप कुछ उम्मीद न करें, क्योंकि ये जो पीएसयू का पिछले 10 साल में जो क्लीनिंग हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सरकार से कोई और उम्मीद करनी चाहिए। जो बड़ा रिफॉर्म, एक तो इनका बैलेंस शीट का क्लीनिंग अप हो चुका है, इनका मर्जर हो चुका है, ये बड़े बैंक हो चुके हैं। अब इसमें पूंजी की जरूरत नहीं है, ना ही इसको कोई सरकारी मदद की जरूरत है, ना कोई किया जा सकता है जिससे कि शेयर होल्डर को कोई खास फायदा हो। लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि इनके परफॉर्मेंस में बदलाव होगा और वो बाजार का जो रुख है वो थोड़ा बदला है, पूरी तरह नहीं। इन बैंक को साबित करना पड़ेगा कि ये बाजार में कॉम्पिटिटिव फोर्स साबित हो सकते हैं, ये प्रूव होते हैं। और नेक्स्ट कॉलर इज धर्मवीर फ्रॉम दिल्ली। धर्मवीर, वेलकम टू मार्केट मंत्र। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए जी। म्यूचुअल में अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ा जाए, और निफ्टी 50 और निफ्टी 100 की समझाएं ये क्या चीज होती है, इसमें कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है। इक्विटी के बारे में भी थोड़ा इसके बारे में बताएं, जो क्योंकि अभी सरकार ने एनसीपी का जो एक नियम जो बताया गया है किसके बारे में थोड़ा। धन्यवाद। हेलो। या धीरेन्द्र, गो अहेड। Can you just update me on the second part of this question? दूसरे भाग का जो सवाल था। Well, after asking how do I join mutual fund, he said, talk to me about Nifty 50 and Nifty 100 and how can I benefit from this? And his question was in Hindi, so you can answer in Hindi. Yeah. जी हाँ। बाजार में पैसा लगाने का एक तो है कि आप बाजार में पैसा सीधे तौर पे लगाए, शेयर्स में अगर पैसा लगाना हो, और दूसरा तरीका है कि लेकिन जब आप बाजार में सीधे तौर पे पैसा लगाते हैं तो आपको खुद ही चुनाव करना पड़ेगा, खुद किस समय लगाएं, किस समय निकालें, किस में लगाएं, किस में निकालें, ये आपको, और इसमें समय लगाना पड़ेगा। अगर आप समय लगाने के अगर आपके पास सक्षम नहीं है, अगर आपके पास समय नहीं है और साधन नहीं है इस चीज को क्लोजली एनालाइज करके इन्वेस्ट करने का, तो आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, जहां पे आप अपना पैसा किसी को देते हैं और वो आपके बिहाफ में पैसा लगाता है, और जो भी होने वाला मुनाफा या नुकसान है उस अनुपात में आपको मिल जाता है। और म्यूचुअल फंड का भी दाम जो अंडरलाइन जहां पे पैसा लगाया गया है उसके बदलाव की वजह से या बदलाव के आधार पे वो बदलता रहता है जी। निफ्टी 50 बाजार में लगाने का एक और जरिया है कि आप जब पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल निफ्टी 50 फंड में पैसा लगाएंगे तो निफ्टी 50 के अनुपात में आपका सारा पैसा बट के लग जाएगा। ये बहुत आसानी से आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करने का तरीका है। निफ्टी 100 वैसा ही 100 बड़ी कंपनियों का जो इंडेक्स है वो निफ्टी 100 है और वो 100 बड़ी कंपनियों में पैसा लगेगा। और गुरुग्राम से हमारे श्रोता बीपी नरूला जी लाइन पे हैं। नरूला जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। My question to Mr. Dhirendra Kumar is regarding I have invested in short-term funds. Now it's about 2 years, but I want to calculate what would be the index value of the funds after 3 years, because after 3 years, as I understand, the taxation is 20%. Yeah. Whereas otherwise it is 30%, but I want to calculate it myself rather than leaving it to the CA to calculate the index value. How do I do that? What you just upload, you will have the indexation, the cost inflation index, which is disclosed, which is declared in every budget. So you have it for the last 2 years. You don't have it for this year. So you will have to wait for the budget of this year in which the inflation index is announced, and that will be the basis. You will be able to get that index and you will be able to adjust your capital value. The other easier way is that there are many websites and services where you can actually upload your portfolio on Value Research online, and it will be able to give you what is the indexed gain, what is your gain post indexation based on the cost inflation index,
automatically. You can just download the statement, and that could well be used for your tax filing as well. So even before selling your investment, you can know what will be the indexed value and what will be your capital gains tax liability after indexation. और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं आज की एक और खबर। आयकर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए 25 दिसंबर तक 4 करोड़ 40 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। इसमें ITR 1 के अंतर्गत 2 करोड़ 40 लाख और ITR 4 के अंतर्गत 1 करोड़ 10 लाख रिटर्न जमा किए गए। आयकर विभाग आयकरदाताओं को SMS और ईमेल भेजकर रिटर्न जमा करने की याद दिला रहा है। व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए ITR जमा करने की बढ़ी हुई तारीख 31 दिसंबर है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 5 करोड़ 95 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे और रिटर्न जमा करने की बढ़ी हुई तारीख 10 जनवरी थी। Global crude oil prices ended the week higher as the market focused on next steps by OPEC Plus and the impact of the Omicron variant. Brent crude oil futures rose 3% during the week to settle at $76.14 a barrel. Oil prices have recovered this week as fears over the impact of the highly infectious Omicron variant on the global economy receded, with early data suggesting it causes a milder level of illness. The U.S. Federal Reserve said last week it would end its pandemic-era bond purchases in March, paving the way for 3 interest rate increases that most Fed policymakers now believe will be needed next year. The Organization of the Petroleum Exporting Countries and Allies, including Russia, known as OPEC Plus, will meet on 4th January to decide whether to go ahead with 4 lakh barrels per day production increase in February. Russia believes oil prices are unlikely to change significantly next year, with demand recovering to pre-pandemic levels only by the end of 2022. Some investors remain cautious amid surging infection cases. Dhirendra, our caller Jitendra from Jaipur, who had asked about the balanced advantage funds, had also asked about FIIs, the news that we keep talking about equity, they take out money and they put it into debt. What does it mean? So could you dwell upon that? No, there are 2 different set of investors who invest in equity and debt. And I haven't, there could be some FIIs, but it is not a tactical move. In fact, in All India Radio, the regulatory reporting by all FIIs, there are FIIs who invest in Indian debt, there are FIIs who invest in Indian equity. That is reported every on a day-to-day basis. So there will be, they are mutually, I don't think they're complementary sets. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। Thank you, Dhirendra, for joining live and answering the questions of all our listeners. And thank you to all the listeners who joined in and asked the questions, very sharp, very specific questions pertaining to mutual funds. You can ask your questions about mutual funds every Sunday. Dhirendra is live in the studio to answer your questions. That's all that we have in this edition of Market Mantra. But before we close, a reminder of the headlines. Indian companies mop up over 9 lakh crore rupees through equity and debt routes in 2021. Foreign investors pull out over 23,500 crore rupees from the Indian capital markets so far in December. And global crude oil prices end higher this week as investors focus on OPEC meet next year. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market